Hello friends, myself Charan Thakur. Today we learn standard 9th Maths English medium chapter number 7. Start a new chapter, chapter number 7. In chapter number 6 we have to learn different properties of lines and angles, alternate angle, corresponding block यानी कि this two inscribed angle with two parallel lines and one line are transversal, so is a 180. Addition of this angle is 180. Alternate angle, vertical opposite angle, so this type of angle can be learned. Now in chapter number 7 we have to learn about triangles. So some basic concept of triangles. Triangle, it means have a three lines can joined by three vertices. So here vertex A, B and C are three vertex, and only here no lines can be parallel to each other or co-linear line. It means here only out of 3 point, यहाँ पे जो 3 point है उनमें से only 2 points co-linear point है, यानी कि एक ही लाइन में आए हुए पॉइंट. अगर ये पॉइंट तीनों co-linear पॉइंट होंगे तो A, B, C इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे तीनों कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल की फिगर क्रिएट नहीं होगी. तो ट्राइंगल की फिगर के लिए ओनली 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट एंड अदर देन कोलिनियर्स. 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. उसी तरीके से 3 साइड ए बी, बी सी एंड ए सी आर 3 sides. So these are some basic concept or information about triangles. Now what is congruence of triangle? Words congruence, so understand congruence triangle. Word congruence triangle or a congruent figure. So first, congruence means what? So congruence means equal in all respect or a figure whose shape and size both have a same. Shape and size both have same of two figures is called congruence. Suppose this square, so both have a shape is a square, so one possibility fulfilled. Now 4 centimeter all side, here also 4 centimeter, it means size. सो शेप एंड साइज दोनों अगर सेम होंगे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे. सपोज दूसरा एग्जांपल, तो इन दोनों की जो शेप है वो सेम है बट साइज में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है. तो ये जो शेप इक्वल बट साइज डिफरेंट, तो इस टाइप की जो फिगर होगी उसको हम बोलेंगे सिमिलर टू ईच अदर, एंड दिस अदर फिगर इज नोन एज congruence figure, and down part figure is similar figure, यानी कि similarity, only shape can be same for any shape, triangle, square, rectangle, rhombus, parallelogram, all can be shape. Suppose our maths textbook and science textbooks, तो both have a same rectangle shape, but the size and dimension will be different for both book. Therefore maths textbook and science textbook is a similar, not congruence. सपोज मैथ्स टेक्स्ट बुक को हम कंपेयर करेंगे 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स टेक्स्ट बुक से, तो ये शेप, साइज, डायमेंशन ऑल आर इक्वल, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस. तो यानी कि शेप सेम होंगे, साइज सेम होगी, यानी कि डायमेंशन सेम होंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस, और ओनली शेप सेम होगा तो उसको बोलेंगे हम सिमिलर. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, you have to given some figure in textbook. So here first figure 4.5 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. In similar way here 4 centimeter, 5 centimeter and 4.5 centimeter. So this triangle have a same dimension and shape will be both have a triangle. So उसको हम बोल सकते हैं कि जो साइड है वो इक्वल है एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंस. सो उसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बोल सकते हैं. तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है ट्राइंगल PQR congruence to triangle ABC,
triangle PQR is congruent to triangle ABCB. So we can write here triangle N equal, and this symbol can be represented symbol of congruence. So here represented congruence triangle ABC. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा. एंगल A इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाया गया है, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, यानी कि जो P है वो A से सिमिलर होगा, Q इज सिमिलर टू B, R इज कॉन्ग्रुएंट टू C, यानी कि A की जो, अब इस तरह से आप साइन में लिखते हो तो जैसे P एंगल है वैसा ही एंगल A होगा, यानी कि A इक्वल टू एंगल P होगा. उसी तरीके से Q इक्वल टू B, R इक्वल टू C. एंड साइड देखेंगे तो PQ साइड AB साइड से इक्वल होगी, QR साइड BC साइड से इक्वल होगी, एंड PR साइड AC साइड से इक्वल होगी. सपोज हमने इस तरह से लिखा होगा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, ऐसा लिखा होगा तो आपको ये समझना है एंगल A की वैल्यू Q से मैच होगी, B की वैल्यू P से, और C की वैल्यू R से. जो फर्स्ट लिखा होगा वो फर्स्ट से सेम होगा, सेकंड से, थर्ड से. एंड बोथ साइड AB इज इक्वल टू QP, BC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू QR. तो इस तरह से आप कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं. तो ये सिंबल की बात हुई, कॉन्ग्रुएंस की बात हुई. नाउ सम थियरम ऑन द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. Some theorem congruence of triangle. So here first theorem is SAS congruence rule. SAS congruence rule का मीनिंग होगा, S means side, angle and side. तो उसका मीनिंग होगा साइड, एंगल एंड साइड. सो अगर दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी और उसके बीच का एंगल इक्वल होगा तो उसको हम बोल सकते हैं बोथ हैव अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सो उसको अंडरस्टैंड करते हैं. ट्राइंगल ABCPQR, आपको थियरम प्रूव करना है SAS रूल. S मीन्स साइड, एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड. सो ये दोनों साइड इक्वल होगी, सपोज ये दोनों साइड, और उसके बीच का एंगल इक्वल होगा. उसी तरीके से यहां से ये दो साइड इक्वल होगी, उसके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड थियरम. साइड एंगल साइड थियरम. तो अगर आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना हो, अगर किसी को प्रूव करना हो कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये चैप्टर में हमें यही प्रूव करना है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो ये फर्स्ट रूल है. अगर किसी ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होगी, सभी एंगल इक्वल होंगे तो उसको तो हम कॉन्ग्रुएंस बोल ही देंगे. बट सभी ट्राइंगल के लिए सभी साइड इक्वल सभी केस में आपको नहीं दी जाती है, तो उसके लिए किसी भी दो साइड इक्वल होगी, यानी कि ये 5 होगा तो ये 5 होगा, इसकी वैल्यू 8 होगी तो उसकी वैल्यू 8 होगी. सपोज ये एंगल आपको 30 का दिया गया है तो ये एंगल आपका 30 का होगा. तो इस तरह की कंडीशन होगी. और आप एंगल C और एंगल R और ये जो साइड है उसके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, फिर भी आप बोल सकते हो बाय यूजिंग SAS थियरम, SAS रूल्स, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग SAS, यानी कि दो साइड इक्वल होगी और वही दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होगा, तब आप बोल सकते हो बोथ ट्राइंगल हैव अ कॉन्ग्रुएंस. ये फर्स्ट रूल है, आपको फर्स्ट ऑक्सियम है. तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना 7.1. ये पूरा आपको स्टेप वाइज लिख देना है. उसके बाद ऑक्सियम 7.1 लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ तक. उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करनी है और ये मेजरमेंट दिखाना है. नेक्स्ट अनदर रूल इज, ये दो एग्जांपल दिए गए. अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल है ये 7.1 थियरम 7.1. सो थियरम 7 आपको ये कह रहा है कि ASA, अब रूल्स चेंज हो गया, ASA यहाँ पे SAS यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच में एंगल था, अब दो एंगल के बीच में एक साइड होगी. Two triangles are congruent if two angle and the included sides of one triangles are equal to the two triangles are included side of other triangle. It means
यही सेम लेंगे हम, एंगल ए बी सी डी ई एफ। तो सपोज एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। तो ये दो एंगल्स है, एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पे ई और एफ ये दो ट्राइंगल्स है, ये दो एंगल के बीच में ये साइड आ गई आपकी। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, एंगल बी जैसा एंगल मिला, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ मिला, तो आपको जो साइड मिल गई एंगल साइड सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई एफ। तो अगर ये कंडीशन होगी, यानी कि दो एंगल के बीच में साइड होगी या दो साइड के बीच में एंगल होगा, तभी आप फिर भी आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई हेल्प ऑफ SAS थियरम। SAS थियरम अब आगे हमने देखा, ये थियरम है ASA एंगल साइड एंगल, तो ये आपको राइट डाउन करना है नोटबुक में। नेक्स्ट डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो थियरम आपका आता है वो ये डबल एस थियरम। डबल एस थियरम ये कहता है आपको, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट SAS थियरम। कि दो एंगल एंड वन साइड, बट एंगल कहाँ होंगे, दो एंगल होंगे उसके बाद साइड आएगी, जैसे कि यहां पे so equally three angles is not sufficient for congruence of triangle, only two angle can be sufficient to understand this statement AAS। कैसे प्रूव होगा वो, suppose you have to given triangle, one is 50, so ये 50 होगा, PQR, यहाँ पे हमने 100 लिया तो ये 100 होगा। वो हम जानते हैं एडिशन ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180। तो ये 100 प्लस 50 150 हो गया, तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 30 का होगा, यानी कि ये 30 का होगा, यहाँ पे भी 30 का होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल आपको दो एंगल इक्वल दे दिए जाते हैं, तो थर्ड जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ थ्री एंगल इज 180। सो दोनों एंगल सेम है तो थर्ड इज ऑटोमेटिकली एंगल। तो आप अगर दो एंगल आपको इक्वल दिए जाते हैं तो आप इतना भी लिख सकते हो, एंगल एंगल थियरम भी लिख सकते हो, और यहाँ पे एंगल एंगल साइड लिखा है, क्योंकि अगर दो एंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि ये दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड कौन होगी, AC। ये भी आप सीख चुके हो। ये दो एंगल है, अगर दो एंगल की वैल्यू सेम होगी तब की बात है, यहाँ पे डिफरेंट है तो उसके अपोजिट साइड ये, उसके अपोजिट साइड है, और दो साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये थियरम आप आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए ये स्टेटमेंट आपको, एडिशन ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180, one angle is 50, another is 100, so addition of these two angle is equal to 150, so remains angle is 30. In similar way here 50 100 and this third angle is also 30। तो इस तरह से दो एंगल इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो एंगल एंगल थियरम। ये केस हुआ। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो यू हैव टू रिटन डाउन ऑल। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, आफ्टर कॉन्ग्रुएंस फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ करने के बाद ये दो फिगर ड्रॉ करनी है, ये सिमिलर है दोनों, ये कॉन्ग्रुएंस की फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंस की फिगर है, दोनों की वैल्यू सेम है, साइड की वैल्यू सेम है, एंगल की वैल्यू भी सेम आप ले सकते हो, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। कंप्लीट होने के बाद 7.3 टॉपिक, एक्सियम 7.1, दिस फिगर कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। नाउ कंप्लीट एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 and example and save theorem 7.1. Case 1 only written down here. Next, this angles side statement, figure draw down, different shape. Example 3 can be solved by itself. Try to. Now next day हम exercise 7.1 स्टार्ट करेंगे, तब आप एक दो सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो 7.1 स्टार्ट होने के बाद एग्जाम्पल 1 2 3 सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल 1 2 3 कंप्लीट करके रखना। सो 7.1 नेक्स्ट लेक्चर हम वी हैव टू सॉल्व 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5। टोटल 8 क्वेश्चन आर गिवन इन क्वेश्चन, सो 1 by 1 सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर।